Hi students, with less than 90 days to go for your the exam called CAT, I'm here to just give you a basic advice, basic gyan to be followed for the next 3 odd months, 2.5 to 3 months duration. The first point being cover your syllabus first, right? Please cover your syllabus through your class notes, through your class video recordings, revise your class notes every now and then solve the practice questions from your sheets, as well as one extra material to be followed for every section. So for DILR, you have to make sure that you have practiced the same topic from at least your sheets and your extra material that is there on classroom application, right? Post that, one more point that has to be taken care of is please take as many mock tests as possible. Mock tests is a very important feature to be developed and taken and analyzed and strategized for in this last 2.5 to 3 months duration, because if you don't test yourself in that time limit pressure, you're not doing yourself justice and your preparation also justice, right? So please take as many mock tests as possible. उनको ढंग से check करो, उनको हर एक सवाल पे time spend करो, post the rest, and please remember while you're taking the mock test, those 2 hours of that test is not as important as what you do with that mock test post those 2 hours. I repeatedly tell every student of mine that analysis of that test is more important than actually taking that test, right? Because in that duration you realize what things went wrong, what things could have been corrected, and so on and so forth, right? Next point to be taken care of is while analysis of the test, please don't run behind questions. हर एक सवाल कैसे कैसे होना है, कैसे कैसे होना चाहिए था, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कौन से वाले सवाल करने चाहिए थे और कौन से वाले सवाल नहीं करने चाहिए थे. So every section you have to analyze, and you have to realize that this one particular thing, one particular statistic is true for CAT. Every section, almost roughly for every section. For example, DILR, right? For DILR, you will realize that even less than half the questions have to be attempted carefully and correctly to secure a 99+ percentile in that section, and that is not without reasons, right? तो एकदम कम करो, जो करो वो एकदम सही करो. At this stage, if you are able to attempt at least around 5-6 questions correctly in your air cats, because you see air cats are slightly above cat level in general, right? So if you are able to attempt 5-6 questions in your air cats, you are good to go for cat. Plus one more thing, after every 3-4 air cats, take one actual cat paper as well to give you more clear picture of what should happen in the actual cat environment, right? उनको भी जरा एकदम ध्यान से शेड्यूल करो. So हर 3-4 मॉक टेस्ट के बाद आपका एक पेपर होना चाहिए cat का, right? That is number 3. One more point, very important point to be highlighted, guys. You all understand the importance of accuracy and speed in these exams, right? Speed भी ज़रूरी है, accuracy भी ज़रूरी है, but in the worst of worst case scenarios, if somebody were to, let's say, point a gun to your forehead and ask you to choose between these two, you should always go for accuracy. ठीक है, स्पीड ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन स्पीड को कॉम्प्रोमाइज करके एक्यूरेसी पे फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर इज़ अ -1 दैट हैपन्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. एंड माइंड यू, बहुत कम करके आपका, सो अ वेरी सिंपल एग्जांपल, इफ यू ड्राइव अ कार ऑन योर रोड, द कंट्रोल ऑफ दैट steering is your accuracy. So if you don't have the control on your accuracy, speed अगर बढ़ाते रहोगे फालतू में ऐसी, तो मतलब फिर वो आपके कुछ भी हो सकता है, right? So accidents can happen on the road and can happen on the test as well, right? तो please make sure कि आप अपना control of the test पे focus करो. Speed तो आपकी जब मर्जी बढ़ सकती है यार, ठीक है? Next point, daily schedules. So every student these days comes to me and asks कि सर एक पर्टिकुलर चीज़ बता दो कि मैं नवंबर तक फॉलो करता रहूँ, हर हफ्ते फॉलो करता रहूँ, तो मेरा अक्टूबर एंड तक का क्या टारगेट होना चाहिए वगैरह वगैरह. आई एम नॉट पर्सनली वेरी बिग फैन ऑफ सेटिंग लॉन्ग टर्म टारगेट्स, सो आई मेक श्योर टू टेल एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन कि
एक दिन अगर आपके हाथ में आ रहा है तो उस एक दिन पे फोकस करो. सो जस्ट बिल्ड योर टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे के बारे में सोचो, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज टू बी अंडरस्टूड एंड टेकिंग केयर ऑफ. ठीक है, हर दिन को कंट्रोल में लेके आओ तो आपका दिन 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 करके आपका पूरा महीना और आपके पूरे 3 महीने कंट्रोल में अपने आप आ जाएंगे. ठीक है, सो डो नॉट थिंक अबाउट द लॉन्गर पिक्चर, थिंक अबाउट व्हाट इज इन योर कंट्रोल राइट नाउ, दैट इज योर नेक्स्ट डे. एंड व्हाइल यू आर प्लानिंग, मेक श्योर कि आपका जो टारगेट है वो आपका हर दिन पे हर सेक्शन को छूना जरूरी है. सो मैनी स्टूडेंट्स अगेन प्लान फॉर कि मैं आज DILR करूंगा, मैं कल VRC करूंगा, मैं परसों क्वांट करूंगा. वैसा बिल्कुल मत करो. जब कैट में ऐसा नहीं होता, तो कैट में ऐसा 40-40-40 का होता है. तो यू ऑल्सो प्लान, यू स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन योर एवरी डे एज मच एज पॉसिबल ऑन द एक्चुअल कैट एनवायरमेंट. वो 2 घंटे जैसा कैट में होने वाला है, वैसे अगर आप रोज 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 करते रहोगे तो आपको कैट अलग नहीं लगेगा. दिस इज कमिंग फ्रॉम अ फैक्ट व्हेन एवरी स्टूडेंट रिपोर्ट्स कि हर टेस्ट के बाद, हर ईयर कैट के बाद ये बताते हैं लोग कि सर टेस्ट के बाद तो वो वाला सवाल हो गया, उस टाइम पे पता नहीं क्लिक नहीं करा वो वाला अप्रोच. राइट, सो दिस हैपेंस विद ऑलमोस्ट एवरी ऑफ यू. राइट, तो वो चीज क्यों होती है? बिकॉज हम लोगों ने उस टाइमर की प्रैक्टिस इनफ नहीं करी है. तो वो 2 घंटे का जो प्रेशरस एनवायरनमेंट है उसमें हम लोगों ने इनफ प्रैक्टिस अपनी डेली नहीं करी है. तो वो अब से शुरू कर लो. इवन 2.5-3 months इज वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट योरसेल्फ यूज्ड टू दैट शेड्यूल ऑफ दैट 2 hours of 40 minutes. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, a very important yet थोड़ा सा हटके पॉइंट, all work and no play makes Jack a dull boy. I follow this to the core of my heart. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके दिन के स्केड्यूल में पढ़ाई के अलावा कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी हो और कुछ एक चीज़ ऐसी हो जो आपको पसंद है करना. सो एनी पर्टिकुलर हॉबी ऑफ योर्स. राइट, तो बहुत पढ़ाई लगातार मत करो. पीपल जस्ट सिट for long hours and just find out at the end of the day कि कुछ हुआ नहीं. ठीक है, तो वो क्यों होता है? Because you don't plan. Right, तो plan your day in a way that your पढ़ाई, that your physical activity, either be it a simple walk in the park or some yoga or some gymming and some hobby of yours is included in that daily schedule. तो ताकि सब कुछ करोगे तो आपको कुछ पढ़ाई में मन भी लगता रहेगा, तो आपकी पढ़ाई कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंसी से होने वाली है. ठीक है, अदरवाइज अगर सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला. राइट, लास्टली प्लीज मेक श्योर कि आप ये चीज फॉलो करो कि टेस्ट जब दो उस टाइम पे उस टाइमर की चिंता कम मत करो, टाइमर को छुपा दो. ठीक है, बिकॉज दैट टाइमर क्रिएट्स दैट प्रेशर. और जब टेस्ट नहीं दो, जब रोज तैयारी करते हो, तो प्लीज मेक श्योर कि आप रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करते हुए रोज की प्रैक्टिस को टाइमर के अंदर करो और टेस्ट के टाइम पे टाइमर की चिंता मत करो. ठीक है, मेक श्योर कि आपका काम माइंड हो, काम माइंड से आप टेस्ट दो, और टेस्ट के शुरू होने से पहले योर पर्पस ऑफ द मॉक टेस्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, और टेस्ट के बाद जब एनालिसिस करो उससे कुछ निकल के आएगा. फॉर एग्जांपल मेरा टाइम एंड वर्क का ये वाला सवाल नहीं हो पाया तो मुझे टाइम एंड वर्क की रिवीजन जरूरी है, तो मैं टेस्ट के बाद टाइम एंड वर्क की रिवीजन कर लूंगा एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट आई विल इंप्रूव. सो दैट इज व्हाट योर साइकिल शुड बी. Right, plus lastly, stay in touch with your mentors, guys. This is the time. My last thought for you all is यही टाइम वो है जब बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं इधर उधर. यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस देखते रहते हो, हमारा वीडियो भी देख रहे हो आप अभी. राइट, तो उस पर बहुत लोग ज्ञान देते हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस टाइम पे आप अपने जो आपके मेंटर्स हैं, मेंटर्स एंड MBA गुरु आर वेरी वेल अडेप्ट इनफ टू टेक केयर ऑफ यू टिल द वेरी एंड. हाँ, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उनसे टच में रहो. दिस इज द वेरी वेरी क्रूशियल टाइम टू स्टे इन टच, नॉट जस्ट टू नो कि आपको क्या करना है, इवन मोर इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या नहीं करना है. ठीक है, तो वो रेगुलर टच एक मेंटेन करके रखो. जहां भी आपका कंफर्ट जोन है वहां पे मेंटेन करके रखो, बट प्लीज डू मेंटेन इट टुवर्ड्स द एंड. राइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट. एंजॉय. थैंक यू.